نبی کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے ان کی بہت دیکھ بھال کی اور اپنے خود کے بچوں سے بھی زیادہ انہیں پیار دیا، لیکن کیا نبی نے بھی انہیں اتنا ہی پیار اور سمان دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے محمد کا اپنی ماں امینہ، دادا عبد المطلب اور ان کی آخر تک تربیت یعنی دیکھ بھال کرنے والے ان کے چچا ابو طالب، ان سب کے ساتھ حضرت محمد کا کس طرح کا تعلق یعنی ریلیشن تھا اور بچپن میں ان کے ساتھ کون کون سی گھٹنائیں پیش آئیں۔ آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں اتنے لوگوں نے جتنا زیادہ پیار اور کیئر نبی کی ان کے ساتھ بعد میں نبی نے کیا سلوک کیے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ محمد نے اپنی زندگی کے شروعاتی 4 سال اپنے سگے رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے دور رہ کر بتائے تھے۔ پھر 4 سال کے بعد جب ان کی عمر 4 سال کی ہو گئی تھی، تب محمد کو آخرکار ان کی اصل ماں کے پاس واپس پہنچا دیا گیا، یعنی حضرت امینہ کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد محمد صاحب اپنے اصل پریوار والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ مگر یہ خوشی بھی محمد کے لیے زیادہ وقت تک نہیں رہی، کیونکہ پھر کچھ ہی وقت بعد ان کی سگی ماں امینہ اور ان کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور محمد پہلے کی طرح ایک بار پھر اناتھ ہو گئے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، جب حضرت محمد کی عمر 6 سال کی ہوئی تب ان کی والدہ امینہ کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران محمد مدینہ میں اپنے ننیحال والوں سے ملنے اور اپنے باپ کے قبر کی زیارت کرنے آئے تھے، اور جب یہ لوگ مدینہ سے واپس مکہ کی اور جا رہے تھے، اس دوران امینہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور پھر اس سفر میں ہی اس کا وہاں انتقال ہو گیا۔ محمد پوری طرح سے یتیم ہو گئے تھے اور ان کے دادا ان کو لے کر مکہ آ گئے۔ ان کی ماں کے انتقال کے بعد ان کے دادا عبد المطلب محمد کی پرورش کرنے لگے، اور وہ بھی اپنی باقی سگی اولادوں سے بھی زیادہ۔ طبقات میں لکھا ہے، جب رسول کی ماں امینہ انتقال کر گئیں تو محمد صاحب کے دادا عبد المطلب نے ان کو پالا اور ہمیشہ اپنی سگی اولادوں سے بھی زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتے اور ہر وقت انہیں اپنے نزدیک ہی رکھتے۔ عبد المطلب اس بات کو بخوبی جان چکے تھے کہ محمد نے اب تک اپنی زندگی بنا باپ کے ہی گزاری ہے، اس لیے وہ محمد کی خوب پرواہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی باقی اولادوں سے بھی زیادہ۔ جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس وقت کعبہ کی چھاؤں میں ایک گلیچہ بچھایا جاتا تھا اور اس پر صرف اور صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ اس گلیچے کے چاروں طرف ان کے باقی بیٹے بیٹھتے تھے، اور عبد المطلب کے ان لڑکوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ عبد المطلب کے ساتھ میں بیٹھیں، کیونکہ عبد المطلب اس وقت حاکم تھے۔ مگر محمد اکثر آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور جب باقی لوگ غصے میں محمد کو ہٹانے کے لیے بڑھتے تو عبد المطلب انہیں روک دیتے اور کہتے تھے کہ میرے لڑکے محمد کو اکیلا چھوڑ دو، اور پھر وہ محمد کی پیٹھ بھی سہلاتے تھے۔ مگر ایسا کبھی عبد المطلب نے اپنی باقی اولادوں کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے کا ریزن یہی نظر آتا ہے کہ محمد ایک اناتھ تھے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کے 6 سال میں بھی وہ اپنی ماں کے پاس صرف 2 ہی سال رہے، اور اس کے بعد ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو عبد المطلب محمد کو اسی وجہ سے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے تاکہ محمد کو کبھی اکیلا پن محسوس نہ ہو، اور محمد اپنے دادا کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ مگر بچپن کی محمد کی بدقسمتی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں رہتے ابھی بس 2 سال بھی نہیں بیتے تھے کہ محمد کے دادا کی بھی موت ہو گئی۔ جس وقت دادا عبد المطلب کی موت ہوئی اس وقت محمد کی عمر ابھی محض 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی موت پر محمد بہت روئے، کیونکہ اس وقت محمد کی پرورش ان کے دادا اکیلے ہی کیا کرتے تھے، اور محمد کے لیے زیادہ غم کی بات یہ بھی تھی کہ ایک کے بعد ایک ان کی پرورش کرنے والے انہیں چھوڑ کر دنیا سے جانے لگے تھے۔ اپنے دادا کے انتقال کے صدمے سے محمد کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ جب دادا کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو محمد بہت رویا تھا، اور اس کے بعد بھی اس کے دادا کی یاد اسے بہت سالوں تک ستاتی رہی۔ خیر، ان کے دادا کی موت کے بعد محمد کو عبد المطلب کے ایک بیٹے جن کا نام ابو طالب تھا، انہوں نے محمد کو گود لے لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ ابو طالب رشتے میں محمد کے چچا تھے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیعہ اسلام کے پہلے امام یعنی حضرت علی کے باپ تھے۔ اس نے محمد کو گود لے لیا اور اسے پالنے لگا۔
तबकात में आता है, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद अब अबू तालिब ने मोहम्मद को अपने पास रख लिया। अबू तालिब ज्यादा दौलत वाले नहीं थे, मगर मोहम्मद की अच्छे से देखभाल करते, यहाँ तक कि अपनी बाकी सगी औलादों से भी ज्यादा। जब ये सोते तो मोहम्मद को भी अपने साथ बिस्तर में सुला लिया करते, और बाहर जाते तो हमेशा अपने साथ ले जाते और हमेशा अपने आसपास हर वक्त रखते। अबू तालिब ने भी मोहम्मद की परवरिश वैसे ही की जैसे कि उससे पहले उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब किया करते थे। बचपन में इस तरह के हादसों को झेलने के बाद मोहम्मद को अकेला पड़ने का डर लगने लगा था। यहाँ तक कि जब मोहम्मद 12 साल का था तब एक दिन अबू तालिब तिजारत के सिलसिले से सीरिया जाने को तैयार हुआ, लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ और अबू तालिब ऊंट पर सवार होने लगा तो मोहम्मद ये जानकर बहुत दुखी हुआ और उनसे बहुत देर तक लिपटकर रोता रहा। मोहम्मद को लगने लगा कि अबू तालिब लंबे वक्त के लिए उससे दूर जा रहे हैं, और इसके बाद अबू तालिब से भी भतीजे के आंसू नहीं देखे गए और फिर ये उसे अपने साथ ले गए। खैर, इसी तरह मोहम्मद की जिंदगी के आखिर तक अबू तालिब मोहम्मद की देखरेख किया करते थे और हमेशा मोहम्मद का साथ देते रहे। जिसके बाद वक्त बीत गया और मोहम्मद अपने बचपन की इन सब घटनाओं से बाहर आने लगे। मोहम्मद के अनाथ होने की वजह से ही मोहम्मद के बाकी करीबी रिश्तेदार भी इनकी बहुत ज्यादा परवाह किया करते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन रिश्तेदारों ने मोहम्मद को उसके दुख भरे अकेलेपन में उसका बहुत साथ दिया, केयर की, यहाँ तक कि अपने बाकी सगी औलादों से भी ज्यादा, उनको ही आगे चलकर मोहम्मद साहब से वफा नहीं मिली। खासकर तब जब इनको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, यानी जब ये अल्लाह की तरफ से नबी बन चुके थे। उस वक्त मोहम्मद ने अपने खानदान वालों और अपने कबीले वालों को जब इस्लाम कबूल करने को कहा, जिसके जवाब में इन लोगों ने मोहम्मद को झूठा कहा और इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद साहब अपने इन सगे रिश्तेदारों और अपने कुरैश कबीले वालों से बहुत नफरत करने लगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो काफिर थे और इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। जैसा कि कुरान की एक आयत में भी साफ साफ कहा गया है कि ए ईमान वालों, इन काफिरों को भी अपना यार और मददगार ना बनाओ, फिर भले ही वो तुम्हारे बाप दादा ही क्यों ना हो। इन सब के बाद ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, और ऐसा तब तक बंद ना हुआ जब तक मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में पूरी फौज के साथ मक्का को फतेह ना कर लिया। अब जरा मोहम्मद साहब की टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद का अपने सगे लोगों के बारे में क्या सोचना था। मोहम्मद की जिंदगी के आखिरी चंद सालों का एक वाकया है कि जब मोहम्मद ने फतेह मक्का किया तो उसके बाद इसने अपनी माँ अमीना की कब्र की जियारत भी की। इस पर मोहम्मद ने अपने साथियों से ये भी कहा कि ये मेरी माँ की कब्र है, अल्लाह ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी है और मैंने उसके लिए दुआ करनी चाही, लेकिन अल्लाह ने ये मंजूर नहीं किया और मुझे मेरी माँ के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करने दी, क्योंकि वो भी एक मुशरिक थी। यानी अल्लाह मियाँ लोगों को यही हुक्म देते हैं कि अपने माँ और बाप के लिए भी मदद ना चाहो अगर वो लोग ईमान वाले ना हों। और अगर ये हुक्म अल्लाह की तरफ से ना होकर खुद मोहम्मद साहब की ही दिमागी उपज थी तो यकीनन मोहम्मद अपनी माँ को माफ नहीं कर पाए थे, और वो भी उनकी मौत के 50 साल बाद भी। शायद मोहम्मद के जहन में अभी भी उनके बचपन की कड़वी यादें मौजूद रही होंगी कि किस तरह उन्होंने मोहम्मद के साथ दूरी बनाई और फिर जल्द ही दुनिया से भी रुखसत हो गई। अब देखते हैं कि चाचा अबू तालिब, जो कि मोहम्मद के करीब 40 साल की उम्र तक उनके साथ रहे, यहाँ तक कि जब मोहम्मद नबूवत का दावा करके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाना चाह रहे थे, तब भी अबू तालिब मोहम्मद को लोगों से बचा रहे थे कि कहीं मोहम्मद की बातें सुन के लोग इन पर हमला ना कर दें, क्योंकि कई बार मोहम्मद और इनके साथी वहां के लोगों के देवी देवताओं के लिए गंदे अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर दिया करते थे। जिस वक्त अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तब अबू तालिब के सभी भाई उस वक्त वहां मौजूद थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने वाले अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से वसीयत की कि वो लोग मोहम्मद का ध्यान रखें, क्योंकि वो जिस नए मजहब को फैलाने के मिशन पर चल पड़ा है वहां उसे किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। अबू तालिब ने अपने बाकी सभी भाइयों से मरते वक्त मोहम्मद की देखभाल करने की गुजारिश की, और सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वे हमेशा मोहम्मद की हिफाजत करेंगे। जब अबू तालिब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त भी हर बार की तरह मोहम्मद साहब ने अपने चचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने को कहा और बहुत फोर्स किया कि वो मरते वक्त कलमा पढ़ लें, यानी ये बात कबूल कर लें कि कोई भी खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं मोहम्मद उसका एक रसूल हूँ। आगे के एपिसोड्स में जानेंगे कि मोहम्मद उन्हें इस्लाम कबूल करवाने का इतना जोर क्यों दे रहे थे।
लेकिन अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि अबू तालिब ने इन्हें साफ मना कर दिया। और इसके बाद मोहम्मद को अबू तालिब पर इतना गुस्सा आया कि ये इनके कफन दफन में भी शामिल नहीं हुए। तबकात की एक हदीस में आता है कि अली, जो कि अबू तालिब का बेटा था, वो कहता है कि आपके गुमराह बुढ़ा चाचा मर गया। ये अली हैं, शिया इस्लाम के पहले इमाम, जो अपने बाप के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। खैर, इनकी बात सुनकर मोहम्मद कहते हैं कि जाकर इन्हें दफन कर दो और फिर मुझे इत्तला दे देना। और इसके बाद आइंदा कभी भी मोहम्मद ने अबू तालिब के लिए दुआ नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। इसी तरह मोहम्मद का यही सलूक उनके बाकी रिश्तेदारों के साथ भी रहा। मिसाल के तौर पर जब अबू तालिब मरते वक्त मोहम्मद की देखरेख करने के लिए अपने भाइयों को वसीयत कर रहा था, उस वक्त इन्हीं भाइयों के बीच इस्लाम का होने वाला सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब भी शामिल था। अबू लहब भी मोहम्मद का चाचा था और इसने अबू तालिब से मोहम्मद की देखरेख करने का वादा भी किया, मगर ये वादा लंबे समय तक नहीं चला। मोहम्मद ने अबू लहब और उसकी बीवी, जो कि रिश्ते में मोहम्मद की चाची थी, इन लोगों पर इन्होंने कुरान की आयतों के जरिए लानत भेजी और इनको जहन्नुम में दर्दनाक अजाब की धमकियां भी दी। आखिर क्या वजह बनी कि अबू लहब, जो अपने भतीजे मोहम्मद की बहुत परवाह करता था और जिसने मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में अपनी गुलाम बांदी को भी आजाद कर दिया था, आगे चलकर यही शख्स इस्लाम का दुश्मन कैसे बन गया? इस बारे में भी डिटेल से आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद साहब सिर्फ शिर्क की वजह से अपने इन रिश्तेदारों से नफरत करने लगे थे? वो भी उन रिश्तेदारों से जिन्होंने इन्हें अपनी औलादों से भी ज्यादा प्यार दिया, केयर की। कैसा लगेगा आपको जानकर कि एक ऐसा शख्स भी था जो कि काफिर था और मोहम्मद साहब उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। और इज्जत ही नहीं, वो बेपनाह मोहब्बत कि उसके मरने पर नबी खुदकुशी करके अपनी जान भी देना चाहते थे। आखिर क्या हो रहा था ये सब, जानते रहेंगे धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में। इंसानी फितरतों और सियासतों से भरपूर इस कहानी से जुड़े रहें और मिलते हैं आगे के एपिसोड्स में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।